Good morning, everyone. Today we are going to study Lorentz force and some other topics related to magnetic effect of current. So first is Lorentz force. In previous lecture we have studied about magnetic Lorentz force. Means a particle moving in a magnetic field experiences some kind of force, and that force is called magnetic Lorentz force. But here we are going to study when the charged particle moves in a region where both electric and magnetic fields are present. So the total force experienced by a charged particle moving in a region where both electric and magnetic fields present, then that force is called Lorentz force. So here it is not magnetic Lorentz force, here it is only Lorentz force. So what is it? See, when a charged particle moves in an electric field, then whether it moves or not, it is static also. Means when in an electric field a charged particle is present, that charged particle experience a electrostatic field or an electric field. ये हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में. So a charge Q, if I say Q, whether it is positive or negative, in an electric field, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, experiences the electric force, how much? Electric force, how much? F is equals to, if I say it is F electric, that's why I am adding this suffix, it is equals to Q multiplied by the electric field. That is the quantity which we have already read in chapter first. Now when this charge is moving in a magnetic field, we have studied that in our previous lecture, that magnetic Lorentz force. So we will write the magnetic force experienced by the charge Q moving with velocity v vector in the magnetic field capital B is how much? That we have studied in our previous lecture, that is F magnetic will be when a charge Q is moving in with velocity v in a magnetic field, and this will be V cross B multiplied by Q. That was the expression for magnetic Lorentz force. So here two conditions are given. Now the directions. आपको याद होगा ये जो फोर्स था, जो मैग्नेटिक चार्ज फील्ड में जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है, ये परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B था. Now as we know the direction of electric field, so force here I am writing about the direction. Force acts, this electrostatic force or the electric force due to electric field acts in the direction of field, है ना, direction of field E. आपको याद हो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव दिशा की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. लेकिन मैग्नेटिज्म में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में वो परपेंडिकुलर चलेगा V और B दोनों के, ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स. So the Lorentz force is actually the sum of these two forces. So when both fields are acting simultaneously, so both the force will work.
resultant force on charged particle will be F, and that is the sum of the vector sum of F electrostatic or the electric and this F m, just because it is now not static because charge is moving, so this will be F electric. So we can write F E की जगह क्यू ई रख दें और एफ एम की जगह क्यू वी भी रख दें, तो क्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई प्लस ये हो जाएगा वी क्रॉस बी. दोनों एक्सप्रेशंस को जोड़ दिया केवल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड लॉरेंज फोर्स एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड कौन सा? लॉरेंज फोर्स. केवल लॉरेंज, ना कि मैग्नेटिक लॉरेंज. लॉरेंज फोर्स याद रखिएगा, इसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू सी वेदर एनी वर्क विल बी डन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और नॉट. मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, ठीक है, तो क्या उसमें कोई वर्क डन होगा या नहीं, तो उसको देखने के लिए हम अगला ये टॉपिक पढ़ेंगे. वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज ज़ीरो. अच्छा, स्टेटमेंट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल में वर्क डन नहीं करता. ठीक है, तो इसको अब हम पहले कुछ एक्सप्रेशंस के थ्रू जस्टिफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं. सो एज वी नो magnetic force when a charged particle q is moving through a magnetic field B, so when a magnetic force will be what? F is equals to q v cross B. इतना तो हमको पता है. चेक करना है क्या ये चार्ज पार्टिकल कोई वर्क डन करेगा या मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, इसके कारण क्या कोई वर्क डन होगा. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्स तो काम करता है पर वर्क डन जीरो होता है. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता है ना. लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा क्या कारण है कि फोर्स तो है, फोर्स तो ये सामने हम देख रहे हैं, लेकिन इसका वर्क डन जीरो है. तो इसको समझने के लिए हमें देखिए एक चीज़ पता है कि ये जो फोर्स F है, सिंस F ये हमको पता है ये V के भी परपेंडिकुलर होता है और V B के भी परपेंडिकुलर होता है. F एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. हाँ, क्योंकि 90 डिग्री पे है. B और क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर दिशा तीसरी दिशा होगी और उसी दिशा में है ये. सो अब देखिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, मान लीजिए A और B दो वेक्टर्स हैं, दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. So the angle between them is 90 degree. So their dot product A dot B will be equals to AB cos theta. So it is AB cos 90 degree and that cos 90 degree will be 0. So the dot product will be 0. यानी दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. So we'll apply it here. Now consider this. F dot V यानी हमारी वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये 0 होना चाहिए. यानी Q V क्रॉस B, ये तो F हो गया, F की जगह ये रख दिया और इसके डॉट में V एक और, इट शुड बी 0. इक्वेशन 1 इट शुड बी 0 क्योंकि ये हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर्स के अकॉर्डिंग है. नाउ वी विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ जस्ट बिकॉज फोर्स इज हियर. सो न्यूटन सेकेंड लॉ विल बी applied here. So according to न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन. सिंपल स्टेटमेंट. सो एज हियर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, so mass will be of what? Charge particles mass.
acceleration can be written as change in velocity dv by dt, no problem. Now this quantity is force, put this in equation 1, f की जगह ये, so m dv by dt, ये f की जगह रख दो, डॉट v लेना है ना, so it should be 0, ये होना ही चाहिए. तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसको थोड़ा समझिएगा, ये कैसे बन रहा है. dv बाई dt, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस पूरे को दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है ना. तो उसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि एम डी, ये जो dv बाई dt डॉट v, ठीक है ना, और प्लस v डॉट dv बाई dt, यानी एक को मैंने दो बार लिख लिया, ठीक है. अब अगर हम इसके दोनों को आधा आधा यानी दोनों को हाफ पार्ट में बांट दिया है, हाफ इधर हाफ इधर, तो ये बन जाएगा एक सिंगल ये वाला, ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, हाफ हाफ दोनों में कर दिया तो ये फुल 1 बन गया और बाहर m मल्टीप्लाई तो है ही. अब देखिए 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया m/2, ये बन जाता है dv बाई dt डॉट भी. देखिए कुछ नहीं किया था, ये ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए a लिखा हुआ है, m a लिखा है, तो मैंने इसको क्या किया, m नहीं ये अलग m a लिखा है तो इसको मैंने m a/2 प्लस a/2 कर दिया, ठीक है ना. और फिर उसके बाद 1/2 कॉमन ले लिया तो m2 a प्लस a टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है ना. तो ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे a की जगह dv बाई dt डॉट v और v डॉट dv बाई dt एक्सप्रेशन हम बनाना चाहते थे. देखिए a डॉट b हमेशा b डॉट a के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस v डॉट dv बाई dt, it should be 0. So we can say that it is m/2. सी एक बार इस वाले मान लीजिए यहाँ पे दो v हैं, देखिए यहाँ भी वेक्टर होना चाहिए और यहाँ भी वेक्टर होना चाहिए. एक बार मान लीजिए यहाँ दो v होते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, d बाई डी टी ऑफ v डॉट v लिख सकते हैं क्या. देखिए एक बार dv बाई डी टी तो ये वाला v बाहर, एक बार ये वाला v बाहर रखना है तो d बाई डी टी ऑफ v, यानी एक बार d बाई डी टी, इस पूरे के कॉम्बिनेशन ही ये है. तो मैंने इस वाले को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया कि मतलब अगर हम डेरिवेटिव लें v डॉट v का तो यही एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि एक बार इस वाले v को बाहर लेके इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर डॉट करेंगे, फिर एक बार ये लेफ़्ट वाले को बाहर लेंगे तो राइट वाले का dv बाई dt करेंगे और बीच में डॉट लगाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. It should also be equals to 0. Now this m/2 will be here. Here it is v dot v. Same vectors का जब a dot a होता है तो आपको वेक्टर्स अलजेब्रा में बताया गया है a dot a should be equals to a स्क्वायर, जहाँ मैग्नीट्यूड केवल बचता है दो वेक्टर्स का. अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सेम वेक्टर्स का तो इट विल बी v स्क्वायर ओनली, ठीक है. और बाहर ये d बाई डी टी तो रहेगा ही, ठीक है, d बाई डी टी. तो इस d बाई डी टी को अब हम बाहर ले लें, m/2 ये कांस्टेंट है, इसको हम अंदर देखिए, कांस्टेंट अगर डेरिवेटिव के अंदर जाए या बाहर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये d बाई डी टी यहाँ पे है तो d, इसको मैं साफ से लिख दे रहा हूँ, d बाई डी टी m/2 v स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 0. तो ये एक्सप्रेशन बना. अब d बाई डी टी ये कांस्टेंट एक नंबर है, नंबर को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ये बन गया d बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं. ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम याद हो तो उसका स्टेटमेंट था द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय द नेट फोर्स, ठीक है. मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या होता था, वर्क डन होता था. लेकिन यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन शो कर रहा है, d बाई डी टी और काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, वर्क डन होता था. तो यानी वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया. तो यहाँ हम लिख सकते हैं d बाई डी टी, इसको हम किसका लिख सकते हैं, k का, और यहाँ k क्या कह दिया, हाफ एम वी स्क्वायर. ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है ना। तो dk बाई dt इज इक्वल टू 0, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आप यहीं पे रख के छोड़ सकते हैं, या आप इसको k इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, तो आपको याद आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क डन बाई दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन विल बी 0। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कोई वर्क डन नहीं करता, ठीक है, ये केवल फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ऐसा एक्सप्रेशन है कि वर्क डन 0 है। नाउ नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने आपको जब हम पिछले वाली क्लास पढ़े थे तो हमने बताया था कि चार्ज पार्टिकल को 3 तरह से इंटर करा सकते हैं, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो सकता था, किसी एक एंगल पे ओरिएंटेड हो मैग्नेटिक फील्ड से। तीसरा क्या हो सकता था, 90 डिग्री पे हो मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसी एक जनरल 90, मान लीजिए पहले हम उसी को देख लेते हैं, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कि क्या होता था एक्सप्रेशन, व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल Q enters with velocity v in a magnetic field B, इसमें इंटर करता है तो फोर्स कितना लगता है उस चार्ज पार्टिकल के, Q V क्रॉस B, है ना। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। इसी को हमने क्यू वी बी साइन थीटा कहा था, अगर थीटा एंगल बना रहा हो तो, वी और बी के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो। अब यहाँ पे मैंने आपको केसेस समझाए थे, तो पहला क्या है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए हम पैरेलल एंट्री कर रहे हैं, यानी इधर से इधर ऐसे पेन की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी दिशा में हम पार्टिकल लेके जा रहे हैं, या इसकी उल्टी दिशा में लेके आ रहे हैं, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल। वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, बात एक ही है, 0 डिग्री या 180 डिग्री। सो थीटा विल बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। सो एफ विल बी एफ क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, अगर हम लेके चलते हैं 180 भी वही है और वो भी वही है, 0 भी। सो द चार्ज पार्टिकल विल, अब देखो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर फोर्स नहीं होता था तो एक्सेलरेशन नहीं होता, एफ इक्वल्स टू एम है, एक्सेलरेशन नहीं होता, और एक्सेलरेशन नहीं होता तो जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है उसी वेलोसिटी से मूव करती रह जाती है बिना इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब बहुत आसान है, ये था मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा थी, ठीक है। ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉन बेचारा है इस तरह से, या कोई पॉजिटिव चार्ज ही, कैसे भी मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बता रहा हूँ, तो ये इस तरह इंटर किया। अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स तो 0 है, तो वो सीधा अपनी जिस वेलोसिटी से, मान लीजिए v वेलोसिटी से इंटर किया था, तो v वेलोसिटी से ही पार करता, v वेलोसिटी, ना कोई एक्सेलरेशन ना कोई डी एक्सेलरेशन, सीधे सीधे जाना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी तरह का उसको फोर्स नहीं फील होगा, चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। चार्ज्ड पार्टिकल
will continue to move along line of force। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद देखिए सेकेंड केस हमारा इंटरेस्टिंग है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन इनिशियल, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, इनिशियल यानी एंट्री वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर केस में फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, QVB हो जाता है लास्ट क्लास में, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसको केस को बनाने के लिए मैं आपको फिगर समझाता हूँ। देखिए ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस बनाने का मतलब ये कहाँ है, प्लेन के यानी पेपर के प्लेन के अंदर, यानी तीर परपेंडिकुलरली प्लेन के पेपर के अंदर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now as it is magnetic field B vector, now one charge is moving inside। मान लीजिए चार्ज हमारा किसी भी एक डायरेक्शन से, आप मान लीजिए मैंने कहा चार्ज ये यहाँ नीचे से ऐसे इंटर किया, किस वेलोसिटी से, यहाँ आते आते ये चार्ज मान लीजिए यहीं से शुरू हुआ था फील्ड, Q चार्ज V वेलोसिटी से इंटर किया, ठीक है, इस दिशा में। अब देखिए उसके साथ क्या होगा, V वेलोसिटी की दिशा ऐसे थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे थी, फील्ड अंदर की ओर। अब ये जो एक्सपीरियंस, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये किस उससे गवर्न होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना हमारा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए जैसे ये उंगलियां हैं, उंगलियों ये जो 4 फिंगर है इसको अंदर की ओर प्लेस करिए, ठीक है, अंदर की ओर यानी प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। तो जब हम ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद जो मिडिल फिंगर है आप उसको खुद करते रहिएगा इस वीडियो को देखते वक्त, ठीक है, लेफ्ट हैंड लेना है, 4 फिंगर को इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर रखना है और मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो फोर्स किधर आएगा, अंगूठे की तरफ, यानी ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये मेरी उंगलियां थी 90 डिग्री, मैंने इसको अंदर प्लेस किया तो ये अंगूठा की तरफ अंदर, यानी फोर्स किधर होगा, जब वेलोसिटी इधर तो और परपेंडिकुलर नीचे तो फोर्स इधर की ओर, ठीक है ना, ये हमारे फोर्स की दिशा होगी, यानी इधर। अब लेकिन देखिए जैसे ही यानी चार्ज अंदर आएगा और सेंटर की तरफ ये ऐसे फोर्स बाएं तरफ इसको डिफ्लेक्ट करेगा तो चार्ज अंदर आते आते थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ फिर उसको अंदर फोर्स फील होगा, यहाँ थोड़ा सा और अंदर घूमेगा, ऐसे ऐसे चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमने लगेगा, घूम जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को, ये जो अगर 90 डिग्री पे इंटर कर रहा है पार्टिकल तो उसको घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में, यानी हर बार फोर्स किधर लग जा रहा है, जब यहाँ पहुँचता है तो फोर्स सेंटर की तरफ, यहाँ पहुँचता है तो फोर्स सेंटर की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है, लेफ्ट हैंड से आप खुद करके देखिएगा कि जब इंटर ऐसे करते हैं कि उंगलियाँ प्लेन के अंदर हो और मिडिल फिंगर जो हो वो हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो फोर्स हमेशा इनसाइड, ऐसे यहाँ पहुँचा चार्ज तो अंदर की तरफ, यानी हर बार फोर्स किधर की तरफ ओरिएंटेड है, एक कोई सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ। तो अब देखिए फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इस केस में जब 90 डिग्री इंटर किए थे तो सेंटर की तरफ, यानी हमने एंट्री ही मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे की थी। सो फोर्स लगेगा कितना, एस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एफ विल बी इक्वल्स टू QVB ओनली, है ना। दिस फोर्स विल एक्ट बट डायरेक्शन गवर्नड बाई विच वन, डायरेक्शन governed by left hand rule, left hand rule, which one, Fleming's left hand rule। अब देखिए यहाँ पे आपने ये पाया कि ये जो फोर्स है ये ऐसे गोल घुमा रहा है पार्टिकल को, हर बार सेंटर पे लग जा रहा है, सेंटर की ओर, एक सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, कौन सा फोर्स हमने पढ़ा है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स कंटिन्यूसली, अपने केस में कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट्स
द पार्टिकल साइडवेज, साइड से डिफ्लेक्ट कर रहा है और किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स किधर काम कर रहा है, प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, पीटल फोर्स, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी मान लीजिए अगर वो रेडियस जिसने बनाया, ये डिपेंड करता है कि कितने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो mv, मान लीजिए r रेडियस का पाथ उसने बना दिया, तो mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, v वेलोसिटी सेंटर किया, m मास का पार्टिकल, r रेडियस का उसने पाथ बनाया, तो ये किसके बराबर होगा, वो जो फोर्स काम कर रहा था उसी फोर्स ने तो ये फोर्स प्रोवाइड किया है, यानी मैग्नेटिक फोर्स QVB। So this will be expression. Now we can say that R will be equals to mv upon qb, यानी हमें ये पता चल गई कि अगर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से q चार्ज है उस पार्टिकल का, b मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो वो कौन सा पाथ ले लेगा, ऐसा सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा जिसका रेडियस r होगा। अब अगर चूंकि वो चक्कर काटने लग गया, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 90 डिग्री से एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड के और पार्टिकल कैसे गोल गोल चक्कर काटने लग गया, ठीक है, किस रेडियस पे, आर रेडियस पे। आर रेडियस क्या है, mv/qb, ठीक है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमने लग गया। अब देखिए इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, 1/r हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2πr/v, यानी फ्रीक्वेंसी का उल्टा, यानी 2πr हो गया और वेलोसिटी हो गई, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 2π/v, r की वैल्यू रख दो mv/qb, सो दिस विल बी 2πm/qb। ये तो पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन अगर निकालना हो, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1/t, f से रिप्रेजेंट कर दो 1/t, इट इज इक्वल्स टू qb/2πm, यानी इस फ्रीक्वेंसी से चक्कर लगाने लगेगा वो पार्टिकल, ठीक है। यानी जब पार्टिकल 90 डिग्री पे इंटर करता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करता है, जो कि राउंड वो सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। ऐसा क्यों हुआ, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल के कारण। उसको आप रिपीट करिएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो चक्कर काटने लगा, इसको कहते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसका एक्सप्लिकेशन कहाँ पड़ता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर में इसका इस्तेमाल होता है। आगे हम देखेंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है। ऑलराइट, थैंक यू।